Hey guys, today we will learn about aromatic amines. In the last class, we discussed basic strength, factor affecting basic strength, and we also solved number of question on basic strength. Now in this class, we will discuss about aromatic amines and we will solve their related problems. Now see, this is aniline. We can also say that it is aniline. Aniline is a aromatic amines. Okay. Now see, aromatic amines are weaker base than ammonia because the lone pair of nitrogen is delocalized, or we can say it is involved in resonance. See how, since this is the lone pair, what will happen? It will go into resonance with pi bond. As it go in the resonance, what will happen? Okay, see, this lone pair will go into resonance with this pi bond. It supplies the electron to this carbon, and this electron cloud will supply to, and this electron cloud will supply to this carbon. So this carbon will get negative charge. Now negative charge will go in resonance with this pi bond. Charge will appear here. Again charge will appear here. Clear? So what is happening in case of aromatic amine? The lone pair available on nitrogen is delocalized, means it is involved in resonance. Involved in resonance means it is rotating. Clear? It is not available at one carbon. As we see resonating hybrid. Now assume what will the resonating hybrid? This is the resonating hybrid, and charge density is getting distributed over the molecule. Clear? Since charge density, lone pair or electron density is distributed, so the charge density at this carbon will, so the charge density on this nitrogen will be less as compared to this nitrogen, because this lone pair is not involved in resonance, but this is involved in resonance. Since it is involved in resonance, so their charge accumulation will be less, or charge density at this nitrogen will be less. Is it correct? Since charge density is less, if a electron accepting group will come, if a electron accepting group will come, it will attack quickly, but it will not, because its charge density is less. Is it okay? We can also say by resonance, this is more stable. Directly if we correlate with resonance, we can say this lone pair is involved in resonance, so we can say this is more stable. This molecule is more stable and this molecule is less stable. Since it is less stable, so it will be more reactive, so its basic strength will be higher than this. Is it okay? Correct? Basically we directly compare the charge density, that charge density decide the stability by resonance. Okay. Okay, note it. So what we get, that aromatic amines are always less basic than ammonia, because their lone pair is involved in resonance. Now note it. Now solve these questions. Find the order of basic strength. Okay, solve all these questions. There are only 6 questions. Solve this first. Pause your video, note it, and solve all the question. And also think how plus effect will increase the stability, how minus effect will decrease the stability. Also think about that. चलो आ जाओ फर्स्ट वाले सवाल पे आओ. Now see it. In the first question, what is happening? These molecules have no effect. You know basic strength.
basic strength is directly proportional to plus effect and inversely proportional to minus effect. We know that all plus effect will increase the basic strength and all minus effect will decrease the basic strength. Now see this one. This has no effect. This molecules have plus H as well as plus I. Similarly, this have plus H as well as plus I. This will also have plus H and plus I. But this have 3 plus I. This have 2 plus I because this is methyl. So here only 2 hydrogen will remain and here only 1 hydrogen remain. So 1 alpha H, 2 alpha H and 3 alpha H. So this one have 2 plus H, this one have 1 plus H. Okay. Now higher will be the plus H, higher will be the plus effect, higher will be the basic strength. Now the question is that how the basic strength will affect the, how the plus effect will affect the basic strength. Now see this one. I'm just taking this example, this one. If I, to apply plus H, we have to put plus here and minus here. Is it right? If we put minus here, that what will happen? This will be go in resonance and H2 and H plus, that is plus hyperconjugation. You know that that is the plus hyperconjugation. Now this will go in resonance with these molecules and in the next condition CH2 and here H plus will remain here and this lone pair will in resonance with this, here is double bond here and H2 and lone pair here, there will be negative charge. Now see this, minus NH2 and here is minus. Now see, this minus will give repulsion to this lone pair. Okay, because of this repulsion, this nitrogen will be unstable. Then what he will want, he will try to donate their lone pair. क्लियर है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर को क्या देगा, रिपल्सन देगा. इस नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच के रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो नाइट्रोजन एटम क्या चाहेगा, इसको डोनेट कर दे. क्लियर है, डोनेट कर दिया तो क्या होगा, रिपल्सन रिड्यूस हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. तो यहां पे नेगेटिव आने से इस मॉलिक्यूल्स को रिपल्सन मिलता है जिसकी वजह से इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है. क्लियर है. तो इन दिस मैनर प्लस एच और प्लस एम विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. ओके, इज इट ओके. तो प्लस एम प्लस एच और प्लस एम कैसे इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को वो आप समझ गए. और इंडक्टिव का तो पता है, दे ओनली पार्शियली सप्लाई और पार्शियली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, बट इसमें दिक्कत हो सकती थी. तो आई थिंक ये अभी क्लियर है आप लोगों को. क्लियर है. प्लस एच प्लस एम और प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. क्यों बढ़ाता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी एक तरीके से बढ़ा देता है. क्लियर है. क्योंकि नेगेटिव आया है, अनस्टेबल किया, डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है. क्लियर है. अरे क्लियर है ये चीज. ओके. और चलो माइनस एम वाला में माइनस एम बताता हूँ, रेस्ट आगे बढ़े इस वाले में. तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है. दिस मॉलिक्यूल्स हैव 3 हाइपर कॉन्जुगेशन. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, या क्या बोले लोन पेयर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा कम होगी. क्लियर. ये लोन पेयर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे कम होती चलेगी. तो ये सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ता चलेगा. क्लियर है. तो यहाँ पे 3, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा इंक्रीज करेगा. 2 है, ये इंक्रीज तो करेगा मगर इस वाले से कम. और इस वाले पे 1 है, इंक्रीज करेगा मगर इस वाले से कम. तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले 2 देन 3 देन 4 देन 1. दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. क्लियर है. ये चीज क्लियर रहने हैं. इंडक्ट
इफेक्टिव जितने भी प्लस इफेक्ट हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्लस आई का मतलब पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करना। पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब एटम को अनस्टेबल करता है। वही प्लस एम और प्लस एच भी क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। ये यहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई किया, मतलब इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई किया, तो ये कार्बन क्या करेगा, लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, और उस रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो प्लस इफेक्ट इस तरह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। चलिए इस वाले को समझा। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करें यहाँ पे, तो हेलोजन्स में कौन से इफेक्ट लगाने हैं, वी हैव टू अप्लाई ओनली इंडक्टिव। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा होता है, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का। तो माइनस आई विल डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा ये डिक्रीज करेगा, फिर ये वाला। क्लियर है? क्योंकि इसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा है। इस वाले में आकर के देखो, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, माइनस आई, यहाँ पे मिथाइल मेटा पोजिशन पे है, क्या प्लस एच काउंट करेंगे, नहीं कर सकते। क्या काउंट करेंगे हम लोग, सिर्फ प्लस आई काउंट करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ये हो गया, फिर ये वाला। क्लियर है? चलो NO2 वाले में आ जाओ। तो देखो पहले मैं ये बता देता हूं माइनस एम या माइनस एच कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। इंडक्टिव का तो आपको पता ही है, वो पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करता है, NH2, एंड यहाँ पे N डबल बॉन्ड O एंड O, ये मॉलिक्यूल्स दे रखा है। मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन H2 एंड डबल बॉन्ड एंड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इस प्लस की वजह से इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर ले रहा है। क्लियर है? तो अब इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, और भी घट जाएगी। क्लियर है? मतलब चार्ज डेंसिटी क्या कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसको इस रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने की टेंडेंसी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? क्लियर है? सेम चीज हमने मेसोमेरिक में पढ़ा था, प्लस के बगल में प्लस का आना, या लोन पेयर के बगल में प्लस का आना, सॉरी लोन पेयर के बगल में माइनस का आना, और लोन पेयर के बगल में प्लस का आना। लोन पेयर के साथ माइनस आया तो वो उसको रिपल्सन देगा, अनस्टेबल करेगा। लोन पेयर के बगल में प्लस आएगा तो वो उसके चार्ज, उसको डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा, और चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्लियर है? याद करो मेसोमेरिक में पढ़ाया था, प्लस के साथ माइनस स्टेबिलिटी इंक्रीज, प्लस के साथ प्लस स्टेबिलिटी डिक्रीज, माइनस के साथ प्लस स्टेबिलिटी इंक्रीज, माइनस के साथ माइनस स्टेबिलिटी डिक्रीज। लोन पेयर केस में बताया था, लोन पेयर के साथ माइनस स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। लोन पेयर के साथ में प्लस स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? ये क्लियर है यहां तक? चलो, तो क्या बोला कि माइनस एम जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और प्लस एम क्या करता है, इंक्रीज करता है, या प्लस एच क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब इस वाले में देखो, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे देखिए क्या लग गया, माइनस एम, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, माइनस एम। अब इन दोनों का माइनस एम कंपेयर करो, NO2 का माइनस एम क्या होता है, ज्यादा होता है, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर 2 एंड 3 देन 1। इस वाले में चेक कीजिए, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, प्लस एच एन प्लस आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच एन माइनस आई। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो 2 1 एंड 3। इस वाले का चेक करके बताओ, क्या बताया है, प्लस इफेक्ट इंक्रीज करता है, माइनस इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। माइनस इफेक्ट कैसे डिक्रीज करता है, यहाँ पे बताया है। क्लियर है? प्लस आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ
विथड्रॉ करेगा। अगर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी उसकी बढ़ी तो मतलब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुआ, तो सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। वहीं पे प्लस वाले में जब प्लस एम लगाया था तो प्लस एच लगाया तो क्या आया था, माइनस आया था। माइनस माइनस को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और थोड़ा सप्लाई कर रहा था। सप्लाई करने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, लोन पेयर की कम हो रही थी, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्लियर है? तो सेम चीज लगाने हैं, ये याद रहने हैं, ये याद रहने हैं आपको। तो चलो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, प्लस एच, यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस एम, यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस एम, यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस एच। अब कंपेयर करो, माइनस एम माइनस एच बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, प्लस एम प्लस एच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा, प्लस एम डोमिनेट ओवर प्लस एच, तो कौन सा आ जाएगा, सेकेंड देन फर्स्ट। फिर इन दोनों में चेक कीजिए, ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, मगर ये डोमिनेटिंग है, ज्यादा डिक्रीज करेगा। ये डोमिनेटिंग नहीं है तो इससे कम डिक्रीज करेगा, तो कौन सा आ जाएगा, फोर देन थर्ड। ओके, नोट करें इसको। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑर्थो इफेक्ट ऑन बेस। एसिड पे पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट ऑन एसिड पढ़ा था। यू नो लास्ट टाइम जब ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया था तो वी हैव डिस्कस थ्री इफेक्ट, that is SIR, then हाइड्रोजन बॉन्डिंग, then SIP। हमने बताया था कि SIR एंड हाइड्रोजन जो है दैट इज अप्लीकेबल इन एसिड एंड SIP इज अप्लीकेबल इन बेस। नाउ सी दिस वन, now the ortho effect on base, तो क्या है ortho effect, due to the ortho effect the ortho substituted anilines are less basic than aniline. Now we will see why, what will happen. So see this lone pair, if it supply their lone pair to H plus, that this molecules will form, okay, and we know that NH2 is the a smaller group, so we do not count it for steric repulsion. Okay, their steric hindrance are not counted. But tell me CH3, their steric hindrance, we count their steric hindrance, but we do not count steric hindrance of NH2 and OH because these are a smaller group. But as we convert NH2 into NH3, what will happen? Equivalent to CH3, comparable size, means their size will increase this time because of presence of an additional hydrogen. Okay, as the size will increase, their steric hindrance will come in count. Correct? Now see, as these molecules will form NH3, NH3 and CH3, because of these two bulky group, there will be a high steric repulsion in between them, which make the molecule unstable. Okay, if it make the molecule unstable, then tell me whether its tendency to go right will increase or decrease. It will decrease. Correct? अगर ये इसको अनस्टेबल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? इधर जाने से क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है। क्यों अनस्टेबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर स्टीयरिक रिपल्सन। करेक्ट है? तो अगर इधर से उधर जाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि H प्लस गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या कह सकते हैं, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है, मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। करेक्ट है? किसके, अगर मैं एनिलीन के केस में कंपेयर करूं, एनिलीन यहाँ पे लिया और इसके साथ NH2 and H प्लस रखा, तो इस कंडीशन में इसका इधर जाना पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे इधर जाने में क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल हो जा रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो इसके कंपैरिजन में इसका उधर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी,